Sat Shri Akal, Namaste Adab. दोस्तों मैं हूँ शेरन अली and you're watching Haniwalia Shows. आज की segment में Through the Eyes of a Woman we have Nina Sharma. Nina is a devoted mother, wife, has a career, and she has a master's in English literature. Nina, welcome to the show. Thank you, Sharon, first of all, inviting me to the show. That's Haniwalia show. I never heard about it, but I'm so happy. I'm so excited that I'm here today. You'll hear a lot more about it now. Okay. So Nina, let's start off with, tell us a little bit about yourself, your background when you came to Canada, what your ambitions, goals, did you have any setbacks? So Sharon, I came to Canada in 2000. And I started my career, we started our own business, then I am working in the break right now as a salesperson, and I enjoy my job, I love my job actually, and I have one son, I'm happily married, and I have, my whole family is here in Canada. But my in-laws family is in India, but my parents' side, everybody is here in Edmonton. Okay, and when did you come to Canada? 2000. In 2000? Yes. Okay, and did you have any setbacks coming to Canada, being a woman, being a new family to Canada? Was there any problems? The reason was only that my parents were here. They were forcing me to come here. So they said, you have to come. I was a teacher in India. So I was enjoying my job there too. But circumstances became like that, so I came to Canada in 2000, but my parents, my family was very happy to see me here, that's why I came. Okay, and did you have any regrets about coming to Canada, or when you were first coming from India, did you think, oh, my new country, I'm scared? Oh yes, I was very upset in the beginning, I'm telling you the truth. I didn't like Canada at all. In first 2 years, I was just struggling and I was trying to adjust myself, but slowly you know that when your family support is there, so you feel good. Well, it's nice that you had your family here and they were there to support you, right? Sometimes we come alone to overseas or to Canada and we have nobody. You have to start off by yourselves, right? So it makes it a lot more tough. So it's nice that you had your family here. Yes. So you have a son, and was he born here or back in India? No, he was born and brought up in India. He was here in 2000. He was 14 when he came here. Okay, and how did he adjust to coming from India? So he enjoyed. He enjoyed it. Yes, because of him actually I came. Oh, okay, to make him have like a better future and for his better future. Oh, that's great. So he adjusted really well then with school and Yes. Okay. But in India, the life is totally different. Here, the life is totally different, right? Yeah. So what's the biggest difference, would you say, from India to Canada? When I came here, first I tell you like my journey from a girl to a woman. I tell you the truth. Okay. So in India, your appearance, आपकी शक्ल बहुत मायने रखती है, आपका कलर, स्पेशली आप गोरे हो, आप सांवले हो, ये चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन बहुत है इंडिया में. सो व्हेन आई वाज अ किड, सो मेरे को बहुत ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी, वो आपकी लड़की सांवली है, आपकी ये है वो है, तो मेरे में वो एक चीज़ अंदर बैठ गई थी कि वाई इट्स लाइक दैट, राइट? सो फिर मेरे को किसी ने एक बार, जब मैं डिबेट में फर्स्ट आई, ट्रॉफी लेकर आई, तो मैं किसी से ऐसे डिस्कस कर रही थी कि ऐसे मैं सांवली हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम लगती है अपने आप में, तो उसने मुझे बहुत अच्छा सा जवाब दिया. उसने कहा कि कभी तुमने अपने आप को देखा है, जब तुम हंसती हो तो ऐसे लगता है बाहर आ जाती है, तुम अपनी आंखों में देखो, तुम्हें जीने की एक चमक लगती है तुम्हारी आंखों में. और उसने कहा कि कलर डजंट मैटर, तुम अपने आप को ये देखो कि तुम जब कॉलेज में हो तो यू आर नंबर 1 स्पीकर इन द कॉलेज, आप डिबेट में जाते हो, डेक्लेमेशन में जाते हो, अपने उसके लिए ट्रॉफीज लेकर आते हो, सो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज. आप में इतनी क्वालिटीज हैं, मेरे ख्याल में आप बहुत सारी गोरी लड़कियों को भी पीछे छोड़ देते हो. सो उसने मुझे कहा कि अपने आप को आईने में देखकर हमेशा सोचो कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन. वो दिन था और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई लुक्स, अबाउट माई एवरीथिंग. नाउ आई ड्रेस अप, अपने आप को आईने में देखती हूँ, सुबह बहुत अच्छी लग रही है, चल चक दे फटे. आई थिंक वो जो गोरे के वो इशू होता है, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द बॉलीवुड मूवीज ना. आपके एक लड़कियां के वो देती है कि यू हैव टू बी गोरी, यू हैव टू बी स्किनी, गोरी एंड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, बिकॉज सब बॉलीवुड एक्टर्स मोस्ट ऑफ देम आर गोरी, राइट? सो आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम दैट. ट्रेंड ऐसा था, इट वाज लाइक दैट, बट स्लोली नाउ आई एम लुकिंग एट द बॉलीवुड मूवीज, शक्ल डजंट मैटर नाउ. कोई आपकी शक्ल पे, कोई आपकी अपीयरेंस पे मैटर नहीं करता, पर उस टाइम पे शक्ल वाज फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कों की शक्ल नहीं देखी जाती. हाँ, ये तो चीज है ना. और उनको कहते हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, बस ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है, राइट? तो जो सुंदरता है फॉर मी, ब्यूटी जो है वो इट्स इनसाइड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ यू कैरी योरसेल्फ,
सो फॉर मी मेरे को हमेशा से ये लगा था कि जो औरत है उसको मैं कभी आज तक मैंने कमज़ोर नहीं समझा। बिल्कुल, हाँ। फॉर माई कॉन्सेप्ट अबला नारी वॉज नॉट इवन एग्जिस्टिंग इन माई डिक्शनरी। सो पहले हमारे, आपको पता है मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि हमारे करिकुलम में एक ऐसे होता था, अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। सो इंदिरा गांधी वॉज देयर, सो आई टोल्ड हर, यू नो द रीजन I don't want this essay in my curriculum. She said, why? Because I want to see Indira Gandhi in every woman. Yes. Because मुझे लगता था कि हम औरतों को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे दबाया जाता था। हाँ, बिल्कुल। हर चीज़ के लिए दबाया जाता था। आप घर से अकेले नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, so many restrictions were there. So that used to bother me a lot. Yes, तो मेरे को लगता था कि जो लड़कियां होनी चाहिए उनको उनके सपने पूरे करने के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सो ऐसा नहीं हो कि वो अपना कुछ करना चाहती है वो कर ना पाए। मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं करना चाहती थी लेकिन एज अ गर्ल आई कुडंट डू इट। दैट्स अ ग्रेटेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। एब्सोल्युटली। और आपके पेरेंट्स जो व्हेन दे वर बैक इन इंडिया, डिड दे हैव एनी डिफरेंट व्यूज ऑन दैट कि इंडिया की कल्चर जो लड़कियों यू कैंट बी इज यू नो सोशल इन दैट, were they the old schooling in that sense, were they completely like that? So when you wanted to do more, when you wanted to go to college and that, did they ever stop you or anything? From college, no. But आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा मेकअप नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए एज अ गर्ल, आपको अकेले बाहर नहीं जाना है, so many restrictions. पर पढ़ाई में कभी नहीं रोका, उसमें आगे जाने के लिए बोला हमेशा। पर अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी अगर शादी उस टाइम पे, I was 20 when I got married, right? So मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे जो मैं पूरा करना चाहती थी कि मैं ये करना चाहती। शादी के बाद you can do it. But still, मैंने post graduation I did it after my marriage. Oh, good. Yes, I did my B.Ed after my marriage. छोड़े नहीं अपने सपने, पूरे सपने किए हैं, जिंदगी को जी भर के जिया है, ऐसी बात नहीं है, जो चाहा वो किया है। जी जी। Yes. और husband आपके never stop किया? Oh, never, never, never. And I think ये जो support है family से जो मिलता है, I think that's the best. Yes, family का support बहुत जरूरी होता है, especially first of all एक girl के लिए एक dad का support बहुत जरूरी है। जी। तो उसके बाद एज अ वुमेन आपको हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो ये बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस। और सो आपने वो कुछ पैजेंट्स ऑर्गेनाइज की थी, मिस पंजाबन एंड मिसेस एशिया। सो व्हाट मेड यू डू दैट? इज बिकॉज द वुमेन इन द बैकग्राउंड टू ब्रिंग वुमेन आउट इनटू द यू नो इनटू सोसाइटी कम्युनिटी, ऐसे कुछ था या? यस, 2007 उस टाइम पे हमारे यहाँ पे इतना लड़कियों में कल्चर का वो नहीं था कि गिद्दा वगैरह होते थे फंक्शंस, पर लड़कियाँ जैसे वो कर रही है पर उनको पता नहीं था इसका मीनिंग क्या है। सो मिस पंजाबन में मेरा ये एक मेन एम था कि आई वांटेड टू प्रमोट माय कल्चर। आई लव माय कल्चर, आई लव ट्रेडिशंस। मेरा एक बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वुमन हूँ। सो देखने में चाहे अब यहाँ पे आके बहुत चेंजेस आई हैं, पर मुझे अपनी ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से बहुत प्यार है। सो मैं वही चीज़ यहाँ पे प्रमोट करना चाहती थी। तो 2007 में हमने करा, इट वॉज 1000 पीपल इन द हॉल, राइट? इट वॉज द बिगेस्ट सक्सेस एंड द गर्ल्स जो भी वहाँ पे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, सो दे लव्ड इट। No, that's good. So, girls के जो, did you do applications? Where did they come to you? Did you? Okay. We promote like पहले हमने उनके साथ सबके उनसे उनके बारे में पूछा, इंटरव्यूज ली, उसके बाद हमने 10 टॉप लड़कियों की सिलेक्शन करी थी उसमें से। अच्छा, और सिलेक्शन के how did you select them? What were the criteria? Nothing. It's just you should be confident. No looks. नो नथिंग, कुछ नहीं था। नो सिर्फ मेरे लिए ये था कि लुक्स के ऊपर तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे ये देखना है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आपको अपने कल्चर के बारे में कैसे पता है। तो हमने छोटी छोटी चीज़ें टीच करी लड़कियों को, जैसे हमारे कल्चर में जिससे उसमें बताया गया था साग, जो साग बनाते हैं हमारे उसमें, कि जिसमें साग में जो बर्तन होता है उसको क्या कहते हैं। अच्छा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो, ताकि उनको अपने बैकग्राउंड के बारे में पता चले, पीछे हमारे क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता था उन चीज़ों का। तो ऐसे हमने क्वेश्चनर तैयार किए, उनको वो चीजें सारी सिखाई उसमें। Oh, that's so good. Culture के बारे में ना, not only about the beauty pageant. And nowadays with beauty pageants, usually वो beauty दिखता है। I mean, the first thing is not about figure, not about anything. It was about culture only. जी जी, and I think that's really good now, because वो stereotype भी होता है जब if you're in a beauty pageant, you have to be tall, you know, you have to be skinny, you have to be pretty, and you know everything. You have to have everything. लेकिन it's nice that culture के बारे में है, and you don't have to look at always the beauty all the time. And there's a saying too कि someone can be beautiful
beautiful from the outside, लेकिन उसके अंदर जो होता है बिल्कुल। could be completely ugly. Yes. Right? Yes. ब्यूटी मेरे सबसे ब्यूटी वो है कि आप अपने आप को किस तरह से कैरी करते हो, जी, बिल्कुल। आप कितने कॉन्फिडेंट हो। जी, जी। मेरे लिए ब्यूटीफुल इंसान वही है जो स्किन जो है इस जस्ट सबकी एक है। जी, जी। एक देखा जाए कि स्किन के नीचे सब कुछ एक है, एक स्किन के लिए आप एक किसी दूसरे बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये सुंदर है और ये सुंदर नहीं है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। सो 2007 में मैंने ब्यूटी पेजेंट मिस पंजाबन करा था। 2008 में मैंने करा था मिसेस साउथ एशिया। Oh, Mrs. Yes. That's so nice कि Mrs. के आपकी है, because so many times if you're married you सब you don't get the opportunity ना Oh. कि Mrs. के जो pageant होता है बिल्कुल, बिल्कुल। तो opportunity नहीं मिलता है, so I think that's great. उसमें क्या था कि बहुत जब हम कॉलेज में होते हैं ना, जी। जब यंग होते हैं, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते जी। हैं, पर हम कुछ मजबूरियों की वजह से, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, कई चीज़ों की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते जी, बिल्कुल। और हमारे कुछ सपने जो है वो अधूरे रह जाते हैं। जी, तो जी। उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि जो भी आप करना चाहते जी। हो, उसमें भी सेम था कि नो एज। उसमें एक 80-year-old लेडी ने अच्छा? पार्टिसिपेट करा था। Wow. Yes, that was the beauty of the pageant, and she told her experiences, and everybody just give her a stunning ovation. So she participated in all the rounds जो भी That's थे, amazing. और उसमें भी हमने कल्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखा था कि हमारा कल्चर प्रमोट हो उसमें। जी जी। और वो ड्रेसिंग क्या था? Because I know in some beauty pageants वो सब कभी कुछ कभी नहीं, ट्रेडिशनल भी था ट्रेडिशनल उसमें। था। अच्छा, ट्रेडिशनल, यस, मॉडर्न भी था, वेस्टर्न भी था, सारे राउंड थे जी उसमें। जी। Yes. और कुछ ऐसे did they have anything as far as talent, singing, dancing, Yes, ऐसे कुछ था? इसमें अपने कल्चर के ऊपर ही जी, था जी। कि वो आपको जो भी आपने परफॉर्म करना है, किसी ने स्किट करा था, जी। किसी ने डांस परफॉर्मेंस करी थी, किसी ने उसमें सिंगिंग का था, जी, सारे जी। उसमें थे। So सारे it's round more थे। like to celebrate women now, whether Yes, you're married it or was a single. celebration of womanhood. हाँ, That's it. That's Yes. oh, that's wonderful. अच्छा, आपको it looks like you like to celebrate women a lot, ना? तो Yes. women empowerment के क्या आपके ख्याल है? क्या, like, what is your understanding of that? What do you think about that? वुमेन एम्पावरमेंट क्या women को empower करते हैं? अभी मैं आपको सही बताऊं कि वुमेन एम्पावरमेंट को अभी जो रॉन्ग लीड कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एज अ वुमेन, हम लोग इसको सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट डजंट मीन कि आप मीन हो जाओ किसी के साथ। आप ये सोचो कि हमने अपने कल्चर को पीछे रख के जो हम करते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। जी जी जी। वो मैं ये कह रही हूँ कि अपनी लड़कियों को मैं हमेशा एक ही एडवाइस देती हूँ कि अगर आपने जितना उड़ना है उतना उड़ो। जो भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, आसमान को छूना चाहते हो, छू लो। जी, जी। अपने सपने सारे पूरे करो, बट एक मर्यादा के अंदर। जी। राइट, बिल्कुल। सो वो जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ना उसको मिसयूज करो, जी। ना ही उसको अब्यूज करो, ना ही किसी को करने दो। तो आपके ऐसा लगता है कभी हार्ड पड़ जाता है when you have to do, when you look at women empowerment, so you look at like कभी कभी वो culture थोड़ा से वो कम हो जाता है in women empowerment because they look at, you know, being where men are, ना, being the same as a man, वो same level पे। Yeah. So what is your thoughts about इक्वालिटी होनी चाहिए। जी। हर, मैं कह रही हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ जी। कंधे से कंधा मिला के चलो। जी जी। उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाओ। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं बहुत बन गई हूँ, बहुत कुछ हो गई हूँ, जी, जी। आज तो मैं अपने हस्बैंड को पीछे छोड़ दूँ। जी। सो सेम थिंग अपने ब्रदर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। जी। और जो भी करना है उसको आगे लेके जाने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं पता नहीं, मैं आज डीसी लग गई हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से बड़ी हो गई जी। हूँ। सो कुछ चीज़ों में क्या है कि बहुत कुछ नीचे चला गया है जी। कि कुछ लड़कियां ऐसे सोचने लग गई हैं इस टाइम पे आके कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती जी, हूँ। बिल्कुल। सो लेकिन हमारे टाइम में लड़कियों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी जाती थी, उसके पीछे भी रीजंस थे, बहुत सारे लॉजिक्स थे। जी। तो लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए किसी जी। पे, अपने सपने पूरे करो, जी। बट कुछ लिमिटेशंस जरूर होनी चाहिए उसमें। Absolutely, हाँ Yes. हाँ। और जो limitations, I know कि आप बहुत empowered है with women's in that, और आपके बहुत opinions भी है कि let women do what they want to do. अभी आपको कभी setback हुआ था husband के साथ कि you're doing too much and you had to step back a little bit? Oh, ऐसे yeah. कभी कुछ हुआ? शुरू में जैसे मैं 1986 में मेरी जलंधर दूरदर्शन में सिलेक्शन हुई थी। जी, जी। सो मुझे मेरे डैड ने जाने नहीं दिया एज अच्छा। अनाउंसर। कहते नो, हाँ, ये दिस इज़ नॉट लड़कियों का बिजनेस नहीं है, जी, जी। ये अच्छा काम नहीं है, नहीं करना है, अपने घर में जाके जो मर्जी करना। जी जी। सो वो अपॉर्चुनिटी मेरी गई। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई, फिर इंडिया में मैं ड्रामा क्लब की चैंपियन थी, वहाँ पे प्रेसिडेंट थी। जी। तो उसने मुझे एक ऑफर आई थी सीरियल की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तू आज तेरे को सीरियल मिला है, कल तेरे को मूवी मिलेगी, तू तो मेरे हाथ से गई। सो
वो मुझे नहीं जाने दिया। तो मैं जब यहाँ पे आई, मुझे टीवी शो करने की अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं बॉलीवुड हॉलीवुड की टॉप स्टार भी क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। जी। सो नो प्रॉब्लम। दैट्स सो नाइस। बट वो ही नोज दैट कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरी ख्वाहिश है, और वो पूरा करने में पूरी हेल्प करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड लाइक वी स्पोक अप बिफोर, इट्स सो इम्पोर्टेंट ना कि वो जो आपके सपोर्ट मिलता है हस्बैंड से, बिकॉज विदाउट दैट यू नो हाउ कुड वी। मैं यही कहूँगी यहाँ पे अपने मेल सेक्शन को भी कि अगर आपकी बीवी या आपकी बहन या आपकी माँ कुछ भी करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करो। बिल्कुल राइट। सो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उसको रोको, क्योंकि हर एक बंदे के अपने सपने हैं, हर कोई अपने सपने पूरा करना चाहता है। अगर हमारे सपने पूरे नहीं होंगे तो हम अंदर से मर जाते हैं। एब्सोल्युटली सेम चीज़ जैसे हम कहते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ है कि हम अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। लड़कियों से भी मैं यही कहती हूँ कि अपने कल्चर के साथ जुड़ो हमेशा, क्योंकि जो पेड़ होता है ना, अगर वो अपनी जड़ों से अलग हो जाता है तो वो सूख जाता है, मर जाता है। सेम चीज़ हमारे साथ है। अगर हम अपने कल्चर के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ये भी होता है, वी डोंट फॉलो आवर कल्चर, देन व्हेन वी हैव चिल्ड्रन देन दे वोंट हैव द सेम कल्चर टू ना। वो सब कल्चर जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, दैट्स ऑल गॉन। दिस इज माय ड्रीम इन द चिल्ड्रन। दिस इज माय ड्रीम। अगर मेरा बस चला तो मेरे ग्रैंड किड्स होंगे तो मैं उनको अपना कल्चर जरूर सिखा के जाऊंगी। इवन अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रमोट माय कल्चर to the next generation. Of course, and that's so nice if they have the different culture, right? They have another background culture, different ways of seeing things too. ये भी बहुत अच्छा है। That's really good. I'm so proud of your women empowerment, your thoughts, so positive, your confidence. It's wonderful, wonderful. We are going to go and do some fun questions now. Sure. So get to know you a little more personal. No problem. Okay. So what is your most embarrassing moment? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हाँ, एक बार ये था कि हम लड़ाई कर रहे थे और जिसके बारे में हम लड़ाई कर रहे थे वो हमारा फोन ऑन रह गया था, उसको वो सारी बातें सुन रही थी। That was the most embarrassing moment for me. And he told me next day, ये हुआ आपके घर में। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? Oh my God, that's crazy. So the fight was about him. That's why. Oh no, my God. Yeah, शर्म के बाद. That was in Chandigarh. I still remember that. Back in India. Yeah, back in India. Acha, what do you think makes a person selfish? Our needs, our desires, right? Sometimes we become so selfish, we ignore other person's point of view, right? Feelings, हम उनकी feelings को ignore करते हैं, तो हम लोग उस टाइम selfish बन जाते हैं कि हम अपना सोचते हैं सिर्फ, हम दूसरे बंदे का नहीं सोचते। So this is really, really wrong thing to do that. I think that's the number one thing too. When we think about ourselves, किसी और के परवाह नहीं करते हैं ना, उनके feelings और। Okay, and where did you and your husband meet? आपके meet, आपके ये arranged marriage था या love marriage था या? हमारे टाइम में love marriage not even possible. It was a dream. It was a dream. डेट पे जाना, मेरा बेटा एक बार पूछ रहा था मुझे, मम्मा आप कभी डेट पे गए हो? मैं कहा डेट पे सुनने के नाम पे तो सोचो मत। मेरे डैड ने मुझे बोला था, आई टेल यू दिस इंसिडेंट, कि जो मुझे कॉलेज भेजा वो कोएड कॉलेज था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें अगर मैं कॉलेज भेज रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हारी इतनी सी भी बात कहीं से पता चल गई ना, तो हमारा बेड़ा होता है इंडिया में, तो कहते वो मैंने कच्चा रखा है, वहाँ पे काट के फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी की। इनकी कोई लड़की होती थी, तो जब भी मैं कॉलेज आती थी तो मुझे वो कच्चा बेड़ा दिखता होता था। So, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता था कि नो, हमें ये गलत काम नहीं करना, डैड को पता चलेगा। तो हमारा टाइम बहुत टोटली डिफरेंट था। डेट तो सोचो ही मत, इमेजिन ही मत करो। So I had arranged marriage. Okay. And when you were getting arranged, आपके कुछ like did you feel like you didn't want to do it, or because of the culture you were used to it, you were expecting it? अगर आप एज अ गर्ल देखो कि उस टाइम में जो करना चाहती थी, मुझे शादी से पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर लेकिन मेरे इन लॉज वर रियली गुड कि उन्होंने मुझे पढ़ने से नहीं रोका, बिकॉज माई फादर इन लॉ वॉज प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। सो उन्होंने मुझे ट्यूशन्स पे लेके जाते थे, लाइक ही हेल्प मी अ लॉट। मैं उनका कभी ये एहसान नहीं दे सकती। सो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है मुझे पढ़ाने में। मैंने बीएड करी, उनकी इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने कहा डेट के बारे में, व्हाट इज your version of the perfect date, if you could date? That's like this is still my dream. शायद आपके हस्बैंड शो देख रहा है तो आपके ड्रीम पूरा कर देगा वो। नहीं, वो कभी पूरा नहीं करेंगे, I know that.
कॉन्फिडेंस हाँ कॉन्फिडेंट लाइक वो मुझे पता है इसमें 34 इयर्स सो एंड ही नोज दैट टू मुझे था कि मेरा एक बहुत अच्छा ड्रीम है तो मुझे मैं उस सीन देखती हूँ आपने मूवी वॉच करी होगी अमर प्रेम जी जी उसमें एक गाना है चिंगारी कोई भड़के हाँ वो जो सीन है ना वो मेरी आंखों में अभी भी रहता है मैंने कहा काश मुझे ऐसा राजेश खन्ना वाला बंदा मिल जाए और मुझे वो वाला सीन करना है ये बॉलीवुड मूवीज जो है या ये आपके सपने बेचते हैं Oh my ना तो आप उसी God. सपनों में अटक के रह जाते हो अरे कहते कि प्यार ऐसे है प्यार वैसे है और रियलिटी में बिल्कुल नहीं है आई नो वो 2-3 साल का प्यार होता है उसके बाद बस फिर उसके बाद प्यार तो वो फिर आप कन्वर्सेशन सुनोगे अगर जी। फोन पे हस्बैंड के साथ जी, होगी जी। तो अच्छा आज सब्जी ले आए थे हाँ ये कर दिया था आज मम्मी ने ये कहा आपकी मम्मी ने ये कहा ये हुआ बच्चों ने ऐसे किया कोई बात तो होती नहीं है जी, जी। वो जोक नहीं है एक वो कह रहे कि एक हस्बैंड घर आता है जी। तो उसकी वाइफ कहती है आज बच्चे घर नहीं है तो कहते चलो खिचड़ी बनाते हैं ये रिवाज होता है आजकल जी 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 एंड आई थिंक 2-3 साल तो वो ज्यादा आई थिंक आफ्टर 1 year वो सब यू नो रोमांस सब Yes, जाता जब है बच्चा आपकी लाइफ में आ जाता है तो वो रोमांस तो चला ही जाता है बिल्कुल बिल्कुल ये तो अब द किड्स आर फर्स्ट ना बिल्कुल वुड यू से यू आर अ शाय पर्सन आप शाय है या नो पहले थी जी। लाइक व्हेन आई वाज इन इंडिया आई वाज Yeah. लिटिल बिट बट नॉट Very एट ऑल shy. अब तो आप मुझे बात करवानी है मैं प्रेसिडेंट से बात करनी हो तो आई कैन अच्छा? जब खुल के बात कर सकती हूँ दैट्स ग्रेट Yes. दैट्स ग्रेट आई थिंक थैंक्स टू कनाडा मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मेरे को खुद में अपने आप में जो देखने को मिली है जी, जी। सो अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता वो मुझे लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर Yeah. मी इफ आई वांट टू डू एनीथिंग आई कैन डू एब्सोल्युटली Yes. लगता है आपके बहुत कॉन्फिडेंस है दैट्स वेरी गुड बिकॉज़ Yes. कॉन्फिडेंस मेक्स यू गो और ऑन ट्राई न्यू थिंग्स ये मेरी जॉब में मेरी बहुत हेल्प करता है जी जी Yes. absolutely so if I know COVID is so bad right now it's stopped everything you know social distancing and everything you can't have parties you can't see people you want to see ये सब कुछ जब ये COVID सब खलास हो गया you know I hope so when it all ends what is the first thing you'll do I will tell all my friends, come to my house. We will have a party. big party right Yes. that's what I'm gonna It's do been a long time. We didn't even enjoy our life. I know yeah. एक साल हो गया But we have to take precautions. Yes, right? absolutely. So Absolutely, yeah. It's for safety. Everybody's safety. yeah and hopefully Yes. this is a better year for everybody so Yes. Nina, it's been wonderful having you on the show. You're an amazing woman. I love your confidence that you did from when you were a young girl to womanhood and encouraging other ladies. Is there anything else you want to say to the younger generation out there? बस यही कहूँगी आपको पहले भी कहा है कि जितने सपने देखने हैं देखो जी। जितना आपको उड़ना है उड़ो जितनी ऊंचाइयां छूनी है आप छू लो जी। लेकिन अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहकर अपने कॉन्फिडेंस को अपने वुमनहुड को और अपने वुमन एम्पावरमेंट को ना अब्यूज़ होने देना ना कभी किसी को अब्यूज़ करने देना ना इसका मिसयूज़ करना थैंक यू सो मच शरण इनवाइटिंग मी फॉर द शो Thank you so much for having थैंक यू हनी वालिया जी फॉर योर शो It's been a pleasure. Thank you so much. और हमारे viewers के लिए thank you so much for all your love and support. अगर आप हमारे शो पे आने चाहते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिए या कॉल कीजिए. For more Haniwalia shows, please like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Until next time, take care.